speed up the fan, okay? You have to slow down the fan, right? So for that purpose we are using that regulator, that small regulator. You all know what exactly the regulator is. So that is nothing but the small drive. So these are the electrical drives. If suppose we are considering the mechanical drive, so if we are comparing the mechanical drive and the electrical drive, so electrical drive is more flexible as compared to the mechanical drive, right? Am I right or wrong? Hello, am I right or wrong? Right. Only 49 students have turned in, okay, 29 students are remaining. So, the purpose of the electrical drive is to smoothen the task performance of the machine or the load. Okay, so the motion control is required, right? It is very essential in large number of industrial as well as domestic appliances like transportation system, rolling wheels, we can say paper machines, textile mills, machine tools, okay, and domestic appliances are fans, pumps, washing machines, fridge, okay. So which the system which employed for motion control, okay, the control of motion are called the drives, okay, the system. So there is one system which helps to control the motion of the motor or the load are called drives, okay, and it may employ any of the prime movers such as diesel or petrol engine, gas engine, okay, or steam turbine. So the electrical motors, okay, the electrical motors for supplying mechanical energy to motion control. So that system we need to control the various motion of speed, the torque, control starting, braking. So for that purpose we need one whole system. Okay, so that system is nothing but the drive, and the drives which employing two electric which employ electric motors are known as electrical drives. Okay, drives मतलब क्या, which helps to control the motion. Okay, अब वो ड्राइव्स अगर हम इलेक्ट्रिकल मोटर्स के लिए यूज करते हैं तो उस ड्राइव को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स. यू आर गेटिंग माई पॉइंट. अब इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स मोशन को कंट्रोल करते हैं, मतलब वो स्पीड को ही कंट्रोल नहीं करता है ना, वो स्पीड टॉर्क को कंट्रोल करता है. उसके बाद लोड टॉर्क अलग एक कॉन्सेप्ट है, उसको कंट्रोल करता है. उसके बाद हमें स्टार्ट करना है किसी इक्विपमेंट को, उसके लिए वो हेल्प होता है. हमें ब्रेक करना है, स्टॉप करना है, उसके लिए वो हेल्प होता है. ठीक है, सो ऑल दीज पर्पस आर देयर. सो द होल सिस्टम विच हेल्प्स टू overall controlling of an electric motor, that is nothing but the electrical drives. Okay, shall I repeat it or you got the point? The whole subject is based on only this definitions. Okay, we're going to see the starting, the braking, the controlling of DC motor as well as AC motors. Okay, उसके बाद हम देखेंगे what are the four quadrant, multi quadrant हम बोल रहे हैं, four quadrant वो कैसे यूज होता है, ऑपरेशन कैसे है four quadrant operation. Okay, so all these things we are going to study here. Okay, उसके बाद अब the first thing after the definition of electrical drives, we need to concentrate on the block diagram of the electrical drives. Okay, so block diagram में first क्या आता है, source, उसके बाद आएगा power modulator, उसके बाद आएगा motor, फिर load. ठीक है, अब ये हो गया सिंपल ओपन लूप हम बोल सकते हैं, लेकिन हमें फीडबैक चाहिए है ना. वी नीड टू we should know the speed of the motor and load. So for that purpose we need, no, I'm not presenting, I'm just telling you what exactly it is. Okay, okay,
आपको ऐसे नहीं समझेगा. Okay, first tell me, you got the point. What is electrical drives? Yes or no? Just chat box में लिख दो if you got the point or not. Just write over there in the chat box. Okay. Are you able to see the screen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Okay. So first, after the electrical drives, the common block diagram of the electrical drive. Okay, will see the common block diagram of electrical drive. Okay. So this is source. This is source. अब source क्या होगा? What do you think? Source क्या हो सकता है? AC or DC? DC. Am I right? Yes, ma'am. Yeah. Next is power modulator. Okay. अब source हमारा हो सकता है AC, 3 फेज AC, सिंगल फेज AC. अगर डोमेस्टिक अप्लायंस है तो सिंगल फेज AC होगा. अगर हम इंडस्ट्रियल अप्लायंसेस की बात करते हैं तो 3 फेज AC होगा. उसके बाद अगर हम बात करते हैं किसी DC, HVDC के पास, तो जो भी बैटरीज है, बैटरी वर्किंग अप्लायंसेस है, तो वहां पे हमारा लगेगा DC. So in this way, so we are having broadly classification of the sources, that is AC and DC. In the AC, we are having single phase AC and 3 phase AC. As we all know that, है ना, what is source and what are the what is the classification of source, वो हमें पता है. ठीक है. अब ये source जो है, अब ये सोर्स कनेक्ट होगा मॉड्यूलर से. ठीक है, ये मॉड्यूलर से कनेक्ट हो गया. ठीक है. सोर्स जाएगा पावर मॉड्यूलेटर की तरफ. अब पावर मॉड्यूलेटर और किसके बीच में रहेगा हमारा, नहीं, सोर्स और मोटर के बीच में हमारा रहेगा पावर मॉड्यूलेटर. इफ सपोज आपका सोर्स है AC और आपका मोटर है DC मोटर, तो पावर मॉड्यूलेटर विल वर्क एज अ AC to DC conversion first. So that will be Rectifier. rectifier. Yes, good. And if suppose your source is DC and you want AC, then your source will be Inverter. Power inverter. Okay. And now your source AC is fixed AC and you want the variable AC. Okay, so for that purpose, which type of a modulator or the power modulator will work as a cyclo converter. Okay, and same if you have DC and you want different DC, so for that thing we need chopper. Okay, so according to the operation, according to the requirement of the motor and according to the source that it is there with us, so as per the requirement of the motor, the power modulator will work as a AC or will work as a inverter or rectifier, or we can say cyclo converter or chopper, right? So it depends on the requirement of the motor and that what we have as a source over there. Okay, so as per that the power modulator's operation will going to it will going to work. Okay, so it will go like this. अब ये आ गया यहाँ तक. ठीक है. अब उसके बाद है मोटर is connected with a load. Am I right?
अब लोड रोटेशनल हो सकता है, ट्रांसलेशनल हो सकता है ना। तो ये लोड डिपेंड करेगा, जैसे फैन है हमारा तो वो रोटेशनल लोड हो गया, है ना। उसके बाद बहुत सारे कन्वेयर बेल्ट्स है, तो ये लोड है, ये बहुत अलग अलग टाइप के हैं। तो ऑन दैट बेसिस हमारा जो मोटर है वो कैसे वर्क करेगा और लोड वो जो उसको ड्राइव करेगा। सो ये हो गया हमारा स्पीड रहेगा, हमारा ओमेगा एन, सॉरी हमारा जो स्पीड रहेगा वो रहेगा हमारा ओमेगा एन। हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, तो जो स्पीड है वो है हमारा ओमेगा एन। मोटर का जो टॉर्क रहेगा वो रहेगा टी, कैपिटल टी, दैट इज मोटर टॉर्क। और लोड का जो टॉर्क रहेगा वो रहेगा टी एल, दैट इज लोड टॉर्क। अब ये हो गया हमारा ओपन सर्किट, है ना। हमें सोर्स है, हमारा एसी है, वही हो जाएगा। अगर मोटर डीसी है तो वो मॉड्यूलेटर एज अ रेक्टिफायर वर्क करेगा, फिर मोटर के तरफ वो फिर मोटर को मिल जाएगा जो उसे रिक्वायरमेंट सोर्स की है, वो सोर्स मोटर तक चला जाएगा एंड देन इट विल ड्राइव। अब क्या होगा, वी नीड टू सेंस दी व्हाट कैन आई से, this speed, okay, we need to sense the speed, we need to control the speed. So for that purpose what we want, yes, control unit. control unit, right? To sense first we need sensor. Sensing unit, right? Yes. Yeah. कहाँ गया? ओके, तो यहाँ पे क्या रहेगा, हमारा सेंसिंग यूनिट रहेगा। ये रहेगा हमारा सेंसिंग यूनिट, ये होगा हमारा सेंसिंग यूनिट, ठीक है। अब ये कैसे वर्क करेगा, ये सेंस करेगा कि ये सेंस करेगा। अब ये सेंस करने के बाद ये बोलेगा कि ओके यहाँ पे क्या रहेगा हमारा, अगर हम अभी पहले तो बहुत अलग था, है ना। अभी क्या है कि हम बहुत ज्यादा डेवलप्ड हो चुके हैं इस पर्टिकुलर परफॉर्मेंस में। तो यहाँ पे वो बहुत सारे माइक्रो प्रोसेसर सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। तो ऑन दैट थिंग ये जो है ये कंट्रोल करता है या फिर ये सेंस करता है उस चीज को कि इट शुड बी नॉट, देयर शुड बी वन रेफरेंस वैल्यू, ओके। तो उस रेफरेंस वैल्यू के ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर वो रेफरेंस वैल्यू के ऊपर जाएगा वो सेंस करेगा बाय द सेंस यूनिट एंड देन, सॉरी, यहाँ रहेगा हमारा, क्या रहेगा बोलो, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट। अब ये कंट्रोल यूनिट है, ये कहाँ जाएगा, पहले फर्स्टली पिन, ठीक है। ये हो गया। अब ये कंट्रोल यूनिट जाएगा पावर मॉड्यूलर की तरफ। अब ये पावर मॉड्यूलर क्या करेगा, जैसे ही बोल दिया कि स्पीड बढ़ गई है या कम हो गई है, ये पावर मॉड्यूल, अब पावर मॉड्यूलेटर में हो जो है वो स्विचिंग सर्किट्स है, मतलब जो भी हम यूज करेंगे थायरिस्टर, डायोड, आईजीबीटी, मॉसफेट, जो भी हम यूज करेंगे वो ये कंट्रोल यूनिट यहाँ पे कमांड देगा एंड वो क्या करेगा, अपना ऑपरेशन होगा वो चेंज करेगा, ठीक है। So in this way, this is the whole function will going to work out. Okay. So first is source, then power modulator, then motor, and then load. To sense or to control the speed of the motor, we need one sensing unit which sense the speed of the motor
अगर हमें बोल दिया कि पर्टिकुलर इतना टाइम नंबर ऑफ आवर्स हो गए, नाउ वी नीड टू स्टॉप आवर मोटर, सो दैट also will going to sense by the sensing unit, it will give command to the control unit and control unit will give command to the power modulator to stop. So then मोटर वो कैसे वर्क करेगा, तो वहां पे 4 ऑपरेशन रहते हैं, 4 क्वाड्रेंट ऑपरेशन रहते हैं, दैट विल सी लेटर. यहाँ तक समझा सबको? कुछ डाउट? यस, एनी डाउट? No, ma'am. यहाँ तक समझाना सबको. देखो मैं क्यों अभी आपको 10 मई से, मैंने कल भी बताया शायद से, कि 10 मई से आपका एग्जाम है एमएसटी. ठीक है, हाफ पोर्शन आएगा आपका सेक्शन 1 में से और हाफ पोर्शन आएगा आपका सेक्शन 2 में से. ठीक है, तो मार्क आपको कवर करने के लिए सेक्शन 2 बहुत इजी जाने वाला है. ठीक है, इसलिए मैं अभी बता रही हूँ आपको, है ना. तो हमें आज पूरा एक लेक्चर, एक टॉपिक हमें कंप्लीट करना है, एक चैप्टर बोल सकते हैं. ठीक है, हमें वो कंप्लीट करना है. यहाँ तक समझा सबको? किसी को कुछ डाउट नहीं है ना? व्हाट इज इलेक्ट्रिकल ड्राइव, व्हाट इज ड्राइव, व्हाट इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिकल ड्राइव. अब मुझे बताओ, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मोटर दैट वी आर गोइंग टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑफ ड्राइव्स ऑन दैट पर्टिकुलर मोटर. व्हिच टाइप ऑफ मोटर वी हैव इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम? चलो फटाफट बताओ. यस, According to the type of current, first of all, AC and DC. In AC, induction motors and wound type rotor motors. In DC, series, shunt, and compound motors, and also the special purpose motors. दैट स्पेशल पर्पस मोटर्स कौन से हैं? ब्रशलेस डीसी मोटर, स्टेपर मोटर, यूनिवर्सल मोटर, सर्वो मोटर, राइट? सर्वो स्टेपर. हाँ. राइट. अब लोड कौन से रहते हैं? लोड रहते हैं कांस्टेंट टॉर्क, कांस्टेंट स्पीड और कांस्टेंट पावर. ठीक है, तो वो लोड की तरफ हम थोड़ा टाइम से जाएंगे. ठीक है, मैं बता देती हूँ वैसे. So this is the block diagram. Okay, the basic of block diagram, first is motor. DC motor we have divided in 4 types: shunt, series, compound, permanent magnet. In AC motor, induction motor. In induction motor, squirrel cage, wound rotor motor, and then synchronous round field and permanent magnet again. Power modulators के ये types हैं. ठीक है, AC regulator भी है. ठीक है, अब इसमें जो आता है ना, इसमें बहुत अलग अलग टाइप है, मैं बताती हूँ. ये आप देख सकते हो, ये आप देख पा रहे हो बेटा? सब लोग देख पा रहे हो ना? यस मैम. हाँ, अब ये सिर्फ 4 ही टाइप नहीं है ना? हमारे पास सिर्फ 4 टाइप नहीं है. मतलब सिंपल रेक्टिफायर, सिंपल इन्वर्टर, सिंपल साइक्लो कन्वर्टर एंड सिंपल चॉपर, इतने ही नहीं है. एज यू कैन सी, द फर्स्ट वन, फिक्स्ड वोल्टेज सिंगल फेज और 3 फेज AC to fixed voltage DC. So we will use diode rectifier. Then fixed voltage single phase or 3 phase AC to variable DC, we need fully controlled thyristor rectifier. अब ये thyristor rectifier फुल्ली कंट्रोल्ड थायरिस्टर से भी यूज हो सकता है एंड हाफ कंट्रोल्ड थायरिस्टर से भी हम यूज कर सकते हैं. व्हाट? फिक्स्ड वोल्टेज सिंगल फेज और 3 फेज AC टू वेरिएबल DC. ओके, नेक्स्ट इज फिक्स्ड वोल्टेज. बेटा सर का कॉल आ रहा है, एक सेकेंड रुको.
Okay, sorry. Where were we? Yeah. So for fixed voltage AC, whatever it is, single phase or three phase, we need to convert it into variable voltage DC. So for that purpose, we need half controlled or full controlled thyristor rectifier. Okay. After that, we have if we have fixed voltage single phase or three phase AC, and we need to convert it into variable voltage DC. So again there is another method, transformer with tapping. ओके अगर हम टैपिंग के थ्रू उसे चेंज करते हैं तो हमें एक उसका जो आउटपुट है वो एक वेरिएबल वोल्टेज एसी आएगा, एंड देन दैट वेरिएबल वोल्टेज एसी विल गेट कन्वर्टेड इनटू विद द हेल्प ऑफ डायोड रेक्टिफायर. सो वी हैव टू डिफरेंट types. First is fully controlled thyristor rectifier, then half controlled thyristor rectifier. Otherwise we'll go with transformer with tapping, and then afterwards we'll convert with the help of the diode rectifier. Okay, if we are not supposed to use the thyristor and we want to use the diode, then we have to use the transformer with the tapping. All right. Next is fixed voltage single phase or three phase AC to convert again variable DC. So there is diode rectifier will convert the AC to DC. That will be the fixed voltage DC, and then again will convert that DC to variable fixed voltage DC to variable DC with the help of the chopper. So this one is the fourth method. Okay. Again, if we have again fixed voltage single phase or three phase AC, and again we want variable DC, so rectifier with self commutated devices will be there. So with the help of that also we can convert the fixed voltage AC to variable DC. Okay. Then fixed voltage AC, that is AC, it will give to the AC motor, and then it is connected to the variable voltage DC, that is DC generator. So these are the types that we are going to see, but it is very we can say that the very deep study of various converters, but we need to focus on the rectifier, inverter, cycloconverter and the chopper. All right. Okay. So these are the types. So rectifier AC at constant voltage and frequency. Output क्या होगा DC. With the help of rectifier we can convert AC to DC. With the help of inverter we can convert DC to AC. With the help of chopper we can convert DC constant voltage to a DC desired voltage. Cycloconverter AC at constant voltage and frequency to AC desired voltage and frequency. AC voltage controller which convert AC at constant voltage and frequency to AC desired voltage and input frequency. All right. So these are the different types of the power modulator that we are going to study. Next is sources that we all know that we are having two different sources, AC and DC. Control unit. In the control unit, choice of control unit depends on the types of modulator that is used. There are of many types, like when semiconductor converters are used, then control unit consisting of firing circuits. अब आपका thyristor हो चुका है, ये आपको बेसिक आइडिया पता है थायरिस्टर का, है ना. वहाँ पे गेट रहता है ना, तो वी नीड समथिंग, फायरिंग एंगल रहता है, गेट रहता है, ठीक है, तो स्टार्ट दी थायरिस्टर, है ना. So these are the control unit over there. So it depends on the which type of semiconductor converters we are using over there. Okay, in the power modulator. Switching circuits in the electrical motor and electrical drives are used for running the motor smoothly, and they also protect the machine during faults. अब switching circuit में वही आएगा जो faults वगैरह रहेंगे. So with the help of that also, with the help of switching circuit also, we can save or we can prevent our device from the fault. Okay, fault नहीं आना चाहिए, so we can give one protection over there. After that there is लोड. अब ये लोड के ना बहुत टाइप्स,
ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन द टॉर्क, it depends on the speed. Okay, so mainly the three main electric motor loads are variable torque, constant torque and constant power. ठीक है, अब ऐसा देखें तो यहाँ पे जैसे हम बोलते हैं कि ओनली 3 टाइप्स ऑफ हम बोलते हैं लोड है, टॉर्क डिपेंडेंट ऑन द स्पीड। अब वो कैसे डिपेंड करता है, ठीक है, वो हम देखेंगे। लीनियरली डिपेंडेंट ऑन स्पीड, उसके बाद टॉर्क इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड, टॉर्क प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द स्पीड। अब ये कैसे आ गए, है ना, वो हमें स्टडी करनी है। ठीक है, तो पहले सबसे पहले आता है नेचर। तो एक्टिव लोड है और पैसिव लोड है। एक्टिव लोड में क्या है, इट हैज पोटेंशियल टू ड्राइव मोटर अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन। जो भी इक्विलिब्रियम कंडीशन आती है उसके अंदर जो भी ड्राइव करता है मोटर को, उसे हम एक्टिव लोड बोलते हैं। सच लोड टॉर्क यूजुअली रिटेन्स देयर साइन व्हेन द डायरेक्शन ऑफ ड्राइव रोटेशन इज चेंज। ठीक है, जैसे ही डायरेक्शन ऑफ ड्राइव जो रोटेशन है वो चेंज होती है, तो उस हिसाब से लोड टॉर्क यूजुअली रिटेन करता है। सो उस रिटेनिंग की जो साइन है, मतलब जो भी लोड टॉर्क रिटेन करेगा उसको हम बोलेंगे एक्टिव। ठीक है, और जो अपोज करेगा मोशन को उसे बोलेंगे पैसिव लोड टॉर्क। ठीक है, तो कंपोनेंट्स क्या है, अब इसके कंपोनेंट्स ये है कि फर्स्टली जो लोड टॉर्क है इज इक्वल टू फ्रिक्शन टॉर्क प्लस यूजफुल लोड टॉर्क। सो ये T small l and T capital T small l and T capital L, it is nothing but almost same, but it is the combination of again friction torque. Okay, हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं एक फंक्शन फ्रिक्शन टॉर्क का। अब ये फ्रिक्शन टॉर्क क्या होता है ना, ये फ्रिक्शन टॉर्क इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्टैटिक, कूलम, विस्कस एंड विंडेज। ये 4 टाइप के फ्रिक्शन टॉर्क है, इसका कॉम्बिनेशन है। तो इस सब को हम अगर ऐड करते हैं तो हमारा ये लोड टॉर्क बन जाता है। ठीक है, अब ये लोड टॉर्क कैसे वर्क करता है, तो ये जो लोड टॉर्क है, फर्स्ट कहाँ गया, हाँ, जो फर्स्ट टॉर्क है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑन स्पीड, इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। तो ये जो ए दिख रहा है ना, ए, वो स्पीड से इंडिपेंडेंट है। आप कैरेक्टरिस्टिक्स देख पा रहे हो? यस, हेलो, आर यू एबल टू सी द कैरेक्टरिस्टिक्स? Yes, ma'am. कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं ये भी बता रही हूँ आपको, ये सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ। ठीक है, अब ये फर्स्ट इज टॉर्क इज कांस्टेंट, इट इज इंडिपेंडेंट ऑन स्पीड। ठीक है, तो उसके एग्जाम्पल क्या है ना, और लो स्पीड हॉइस्ट। अब हॉइस्ट क्या होता है, आपने देखा है हॉइस्ट, आपको पता है हॉइस्ट क्या होता है? ये देख पा रहे हो आप? Yes, ma'am. एक पुली है ना, एक राउंड सिलेंड्रिकल ऐसा कुछ है और एक पुली है, तो ये है हॉइस्ट जो लोड को उठाता है विद द हेल्प ऑफ, यहाँ पे आप देख सकते हो मोटर, ये मोटर लगी हुई है ना, उसके शाफ्ट पे। तो विद द हेल्प ऑफ दैट वो क्या करता है, लोड को उठाता है ना, और छोड़ देता है, काउंटर वेट रहता है उसके साथ। ठीक है, तो ये जो है
इसको बोलते हैं हम hoist. तो it is not depend on the speed. It is not depend on the speed. So यहाँ पे जो torque रहता है वो रहता है constant and it is independent of speed. At low speed windage torque is negligible. ये हम बाद में देखेंगे, ठीक है. अब सेकेंड हमारा सिर्फ याद रखो, अगर कांस्टेंट टॉर्क इज कांस्टेंट बोला है, इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड बोला है, तो अगर एग्जांपल आपको पूछा है तो वी हैव hoist as an example of constant torque. Okay, after that paper mill drive. Okay, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि विंडेज टॉर्क. अभी मैंने विंडेज टॉर्क कहाँ बताया? इट कम्स अंडर दी फ्रिक्शन, राइट? विंडेज कम अंडर दी फ्रिक्शन, ठीक है. कूलम टॉर्क कहाँ है? कूलम फ्रिक्शन, वो भी इट कम्स अंडर दी फ्रिक्शन. ओके, तो ये दीज आर द टाइप्स ऑफ दी फ्रिक्शन टॉर्क. ऑलराइट, नेक्स्ट इज टॉर्क इज फंक्शन ऑफ स्पीड. अब कैसे? उसके 3 टाइप्स है. पहला, इट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ स्पीड. इट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ स्पीड. तो इसका क्या रहता है? इट हैज लो स्टार्टिंग टॉर्क. एग्जांपल क्या है? सेंट्रीफ्यूगल पंप्स, एक्सियल एंड सेंट्रीफ्यूगल पंप्स, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर फैन, ओके, शिप प्रोपेलर्स, ये सब जो है ये एग्जांपल है टॉर्क व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द स्पीड. ओके, अब इसका जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये है. द सेकेंड वन, बी. ओके, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द स्पीड. टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर. अगर टॉर्क हम थोड़ा सा बढ़ा रहे तो हमारा स्पीड उसके डबल, स्पीड के डबल वो चेंज हो रहा है, ठीक है. सो दिस इज द torque which is proportional to the square of the speed. Second, torque is linearly proportional to the square of speed. मतलब जितना हम torque बढ़ाएंगे उतनी हमारी speed बढ़ेगी. So the example of such loads are mixer and steerers. जैसे हम वो रहता है ना mixer and steerers, वो है. तो जैसे ही हमारा torque बढ़ेगा हमारा speed भी वैसे ही linearly बढ़ेगा, ठीक है. तो ये हो गया हमारा linear, ठीक है. ये हो गया हमारा लीनियर. जैसे जितना हम टॉर्क बढ़ाएंगे उतना हमारा स्पीड बढ़ेगा. एंड नेक्स्ट इज टॉर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड. ओके, मतलब टॉर्क बढ़ाएंगे, यहाँ पे हम टॉर्क बढ़ा रहे हैं तो स्पीड कम हो रही है, टॉर्क कम कर रहे हैं तो स्पीड बढ़ रही है. सो these आर द टाइप्स और दी लोड, हम बोल सकते हैं लोड के टाइप्स है, ठीक है. तो फर्स्ट हमने कौन सा देखा? The first, A characteristics. क्या है A characteristics? Torque is, बोलो, torque is proportional to independent of speed. independent of speed. It is constant. Torque is constant. Okay, there is no relation between speed and torque. Okay, it is constant. Next, second कौन सा है ये? Torque is to the square of the speed. Okay. Next, this linear, बोलो, directly linear, proportional. directly proportional to the speed. And the last fourth one is Inversely proportional. inversely proportional to the speed. अब इसको हम एक साथ करेंगे तो ये जो टॉर्क दिख रहा है बेटा, ये है हमारे फ्रिक्शन टॉर्क एंड इट्स कंपोनेंट्स जो हमने अभी स्टडी किया है ना. यहाँ से आप देख पा रहे हो ये फ्रिक्शन टॉर्क है. ए जो बोल रहा है ना, ए कैरेक्टरिस्टिक्स, ये है हमारा फ्रिक्शन टॉर्क, ये हमारा ऐसे जाता है, ठीक है. अब ये जो टी एस है ये है स्टैटिक टॉर्क, ठीक है. आप देख पा रहे हो स्टैटिक टॉर्क, static torque where omega m is equal to almost 0. Okay, it is not connected. Okay, उसके बाद है हमारा TC, it is independent of speed. अगर हम independent of speed और ये टॉर्क स्पीड को हम बात करते हैं ना, तो ये हो जाएगा हमारा कूलम फ्रिक्शन, जहाँ पे कूलम फ्रिक्शन वर्क करता है. तो ये और हमारा जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या हम बोल सकते हैं ये और ये सेम है?
क्या हम बोल सकते हैं ये और ये सेम है? यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. So the characteristics which we have seen in the hoist है ना, लो स्पीड होइस्ट में हम देख सकते हैं, तो ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स आती है हमारी कूलम से, फ्रिक्शन कूलम टॉर्क। ओके, अगर मैंने पूछा कि होइस्ट में कौन सी फ्रिक्शन टॉर्क आता है, सो आपका आंसर रहेगा कूलम फ्रिक्शन टॉर्क। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? उसके बाद है टीवी, दैट इज विस्कस फ्रिक्शन। तो ये हम जो लीनियर बात कर रहे हैं ना, ये लीनियर वाला, मतलब इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी स्पीड, तो ये हो गया हमारा टीवी, राइट? तो इन दिस वे वी आर हैविंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ, और यहाँ पे एक ऐड नहीं किया है वहाँ पे, और एक ऐड भी होता है कि जो है फ्रिक्शन टॉर्क वो कैसे जाता है। तो दिस इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रिक्शन टॉर्क, मतलब जो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस टॉर्क, कॉम्बिनेशन ऑफ टीसी, टीवी, टीएस, और वहाँ पे विंडेज टॉर्क उन्होंने नहीं किया है, दैट इज द स्क्वायर ऑफ द स्पीड। ठीक है, आप नोट डाउन कर दीजिए कि जो टीएस है स्टैटिक है, वो है व्हेन ओमेगा एम इज इक्वल टू 0। ठीक है, टीसी है व्हेन इट इज डिपेंड ऑन द स्पीड, टीवी है देन इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी ओमेगा एम दैट इज स्पीड, और टी डब्ल्यू है दैट इज स्क्वायर ऑफ द स्पीड, स्क्वायर ऑफ द स्पीड, ये वाला। तो इसका जो पूरा कॉम्बिनेशन हम अगर हम बात करते तो दैट इज टीएफ, फ्रिक्शन टॉर्क इज इक्वल टू टीएस प्लस टीसी प्लस टीवी प्लस टीडब्ल्यू, ये इक्वेशन। तो इसका जो हम कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस फोर कैरेक्टरिस्टिक्स जब आती है तो इट इज लाइक दिस, ये पार्ट ये आता है ऐसा, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल फोर टॉर्क्स। ठीक है, ये ऐसे टॉर्क आते हैं, तो ये है फ्रिक्शन टॉर्क। ये समझा? सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड हमने यहाँ पे क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ द टॉर्क, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉर्क। अगर हम लोड बोलते हैं जो जिस लोड में हमारा टॉर्क स्पीड के बराबर रहता है, मतलब इट इज प्रोपोर्शनल टू द स्पीड, उसे हम बोलेंगे T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा m। तो वो वैसे टाइप के लोड रहेंगे। तो जो हमने लोड को क्लासिफाई किया हुआ है वो हमने किस पे क्लासिफाई किया हुआ है? डिपेंड्स ऑन दी टॉर्क, रिलेशन बिटवीन द टॉर्क एंड स्पीड, इन दोनों के रिलेशन पे हमने लोड्स को क्लासिफाई किया। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? ज्यादा फास्ट हो रहा है? ज्यादा फास्ट हो रहा है? फास्ट हो रहा है क्या बताओ? No, ma'am. No, ma'am. ऑल ओके? अच्छा, मोनिशा को फास्ट लग रहा है। मैं एक बार फिर से नॉर्मली रिपीट कर रही हूँ आप सबके लिए। हमने पहले ड्राइव्स देखा, फिर इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स देखा, टाइप्स ऑफ डेफिनेशन ऑफ ड्राइव्स, डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स। क्या है कि ऐसे इलेक्ट्रिकल मोटर को हमें उसके मोशन को कंट्रोल करने के लिए जो हम सिस्टम यूज करते हैं उस सिस्टम को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स। सिंपल डेफिनेशन, ओके? इलेक्ट्रिकल मोटर्स को कंट्रोल करने के लिए जो सिस्टम हम यूज करते हैं दैट सिस्टम इज नथिंग बट द इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स। अब block diagram of electrical drives that we have already seen over here. The block diagram of electrical drive में हमने देखा source, power modulator, motor, load, sensing unit, control unit. अब यहाँ पे आता है सोर्स में एसी और डीसी हमें पता है, एसी में सिंगल फेज, थ्री फेज पता है। पावर मॉड्यूलेटर डिपेंड्स ऑन विच टाइप ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द मोटर। ओके, अगर हमारे पास सोर्स है एसी, हमें रिक्वायर्ड है डीसी, तो हमारा पावर मॉड्यूलेटर विल वर्क एज अ रेक्टिफायर। लाइकवाइज what we want, what our motor required as a source,
as an input, the power modulator will work as per the requirement of the motor. That we have already seen. There are 5 types of conversion broadly classified. Okay, inverter, rectifier, we have already seen what are the types of load. It is depend on the relation between the speed and the torque. On that basis, we have classified the types of load. So on that basis, we are having the classification, that is static friction torque, Coulomb torque, viscous and windage. Okay, so the relation between the torque and the speed. The first is the torque is independent of the speed. There is no relation of speed and the load torque. Second is the torque is directly proportional to the square of the speed. Then afterwards, the torque is proportional to the speed, and then torque is inversely proportional to the speed. Okay, so these are the 4 torque that we have studied just now. Okay, so on that basis we have the friction torque, and friction torque is one of the important factor of the load torque. As we know, the equation, that is TL equal to small tl, T small l equal to TF plus TL. That TF having again the 4 types of torque, that is static, Coulomb, viscous and windage. Okay, these are the load. Okay, and then sensing unit, that says the speed of the motor, torque of the motor. It will give command to the control unit, and control unit will give command to the power modulator to control the speed, to start the motor, to break the motor. Okay, so it depends on the power modulator. You are getting my point? Yes, Monisha? Yes, Now you have understood what exactly the drive and all the things that we have discussed now. Okay, great. So shall we move further? Okay. अब हम जाएंगे डायनामिक ऑफ मोटर लोड सिस्टम. आप चाहो तो ये लिख सकते हो, इक्वेशंस है यहाँ पे, ठीक है. आप जस्ट एक, मैं बता रही हूँ आपको, वैसे आप थोड़ा ट्राई कर लो, है ना. So what we have motor which is connected to a load, okay, with the mechanical coupling. We have the motor which is connected to the load, as we know that motor is connected to the load. That connection is the mechanical. It is mechanically coupled with each other. Okay. Motor, we have motor torque T and the load torque TL. Okay, both are in opposite direction. अब मोटर टॉर्क जैसे क्लॉकवाइज रन कर रहा है, तो हमारा लोड टॉर्क कैसे रन करेगा? एंटी क्लॉकवाइज. ओके, ये हो गया हमारा मोटर, ये हो गया हमारा, सॉरी, लोड. ठीक है, यहाँ पे आता है हमारा कैपिटल T, यहाँ पे आएगा हमारा T एंड स्मॉल l. ठीक है, अब यहाँ पे उसका सफिक्स नहीं आता. ठीक है, उसके बाद इट विल mechanically
it is mechanically coupled with each other. Clear? अब ये जो स्पीड है, ठीक है, ये स्पीड है हमारी ओमेगा एम, ठीक है, ये हमारी स्पीड है ओमेगा एम, ठीक है। और जो टॉर्क है, टॉर्क कैसे वर्क कर रहा है, टॉर्क की जो डायरेक्शन है वो ऐसी है, ठीक है। इसके अपोजिट रहेगी हमारी लोड टॉर्क की डायरेक्शन, ये हमेशा अपोजिट ही रहती है, लोड टॉर्क और मोटर टॉर्क हमेशा अपोजिट ही रहेगी, ठीक है। अब उसके बाद जो आता है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। समझा आपको? मोटर है, इट इज कपल्ड मैकेनिकली विद द लोड, मोटर टॉर्क की डायरेक्शन सेम लाइक स्पीड है, ओके, क्लॉकवाइज, और लोड टॉर्क की डायरेक्शन है विच इज अपोजिट टू द मोटर टॉर्क, ओके, एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ तक सबको समझा? वी आर गोइंग टू सी द डायनामिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? Yes or no? Yes, ma'am. Okay. So the first point is motor is generally drives a load, mechanical load, of course, that is machines through some transmission system, while motor always rotate and load may rotate or undergo a translational motion. ओके, ये रोटेशनल रहेगा या फिर ट्रांसलेशनल मोशन रहेगा, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट टाइप ऑफ लोड वी आर यूजिंग। लोड स्पीड में बी डिफरेंट देन द स्पीड ऑफ मोटर, जो लोड की स्पीड है और मोटर की स्पीड है वो मे बी डिफरेंट रह सकती है, ठीक है, इट विल नॉट ऑलवेज बी सेम। Again, it types of load, if the load has many parts then speed of their may be different, some load may undergo through the translational motion and rest may undergo through the rotational motion. To derive the fundamental torque equation, consider the diagram which is shown in below. ये rotational motion के लिए हमने diagram ड्रॉ की है, ठीक है। अब रोटेशनल मोशन के लिए जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है T, that is motor torque minus load torque is equal to moment of inertia into speed. अब ये moment of inertia into speed, इसको हम बोलते हैं angular momentum, okay? T dt of angular momentum. Motor torque minus load torque is equal to T dt of angular momentum. Angular momentum means the product of moment of inertia and speed. You are getting my point? Yes, we are considering that this motion is rotational, okay? We are having two motion, rotational and translational, ठीक है, but for derivation of the torque equation we are considering that the motion is rotational motion, okay? So where we know that J is moment of inertia, omega m is angular velocity, or we can say the speed, radian per second है, speed है, then T is develop motor torque and then TL is the load torque, okay? यहाँ पे लोड टॉर्क इंक्लूड किया फ्रिक्शन एंड विंडेज टॉर्क ऑफ मोटर, फ्रिक्शन एंड विंडेज टॉर्क, ओके?
fundamental torque equation of the motor load system is given by. अब जो first equation है हमारा T minus TL equal to d dt of J into omega m, यहाँ पे हमको प्रोडक्ट वाला डेरिवेशन का जो है कॉन्सेप्ट वो लगाएंगे, है ना. फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट. एम आई राइट और रॉन्ग? Yes, ma'am. Am I right? This equation is right. So we got the equation like this: T minus TL equal to J d omega m by dt plus omega m into dj by dt. Right? So, but the inertia is constant. Okay? It doesn't change with time. तो जो इनर्शिया है दैट इज डी जे बाय डी टी, हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हमने कांस्टेंट कंसीडर किया है, अज्यूम किया है. तो उस हिसाब से अगर हम जाते हैं तो हमारा डी जे बाय डी टी विल कंसीडर एज अ जीरो. सो व्हाट वी विल गेट, so that whole term omega m into dj by dt will consider as a zero. So what we'll get, t minus tl equal to j d omega m by dt. Right, the equation is applicable to variable inertia drives such as mine benders, reel drives, industrial robot, etc. because in this application moment of inertia changes with the time, but for the derives with moment of inertia dj by dt is equal to zero. We are considering, ठीक है. So we'll get t minus tl equal to j d omega m by dt. ये हम यहाँ पे मिल जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है. अब उसके बाद क्या हो रहा है, हमें t चाहिए, मोटर टॉर्क. मोटर टॉर्क इज इक्वल टू जो TL है माइनस TL, वो यहाँ जाके क्या होगा, प्लस TL. सो t इज इक्वल टू TL प्लस j ओमेगा m बाय j d ओमेगा m बाय dt. ये हमें इक्वेशन मिलेगा. While considering the moment of inertia is constant, that is constant inertia. Okay, torque developed by the motor is counterbalanced by load torque and a dynamic torque. But in steady state हम क्या consider करेंगे? In steady state we'll consider that omega m is constant. अगर हम steady state है ना, हमारा कंडीशन रोटेशन में नहीं है, अभी steady state है, स्पीड वेरी नहीं हो रहा है. तो जब स्पीड वेरी नहीं हो रहा है तो अगेन दैट d omega m by dt is will also consider as a zero. So there this whole term, that is j d omega by dm, in the steady state condition this will consider as a zero. So what we'll get, motor torque is equal to the load torque. No, because no acceleration in steady state. Okay, so the motor torque and load torque will counter each other. So this equation it comes like this, that motor torque is equal to load torque when there is no acceleration in the steady state. You are getting my point? This is the dynamics of electrical drives. मतलब पहले हमने क्या कंसीडर किया कि इनर्शिया अगर कांस्टेंट है तो हमें क्या मिलेगा, t equal to TL plus j d omega m by dt. But if we are considering steady state condition, then the speed will be constant. Okay, there is no acceleration in the steady state, right? So acceleration नहीं है मतलब speed constant है, तो हम speed को भी हम consider करेंगे zero. अगर हम zero consider करते speed को, then what we will get, the motor torque is equal to the load torque. They are countering each other. All okay? You got this point? Just write there in the chat box that you have got this point, otherwise I will repeat it again. Okay, so now tell me, what is the first equation? Yes, what is the first equation? T minus T1 is equal to d by dt of j into omega m. Great, very good. And what is j into omega m? Momentum of inertia. Angular momentum. Okay, j is moment of inertia
Okay, and omega m is the speed. Okay, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमने सेकेंड इक्वेशन क्या किया, हमने डिराइव किया है ना, a प्लस dt ऑफ a इंटू बी क्या होता है, a इंटू dt ऑफ b प्लस b इंटू dt ऑफ a. तो ऑन दैट नोट हम जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है उसे हम डिराइव करेंगे, तो व्हाट वी विल गेट, t माइनस TL इक्वल टू बोलो, कोई तो बोलो, j d ओमेगा m अपॉन dt प्लस ओमेगा m अपॉन dj अपॉन dt ओमेगा m इंटू यस या इंटू dj बाय dt. देन उसके बाद हमने क्या अजम्पशन किया, आवर फर्स्ट अजम्पशन इज कांस्टेंट इनर्शिया. सो हमारा कांस्टेंट इनर्शिया है, तो हमारा जो एक ये है वो क्या होगा, कैंसिल होगा, है ना, जीरो कंसीडर करेंगे हम. इनर्शिया अगर कांस्टेंट है तो वो चेंज नहीं होता विद द टाइम, तो वो क्या होगा, जीरो. तो व्हाट विल गेट दिस थर्ड इक्वेशन क्या रहेगा हमारा, t माइनस TL इक्वल टू j d ओमेगा m बाय dt. ओके, सो आवर नेक्स्ट assumption is what is our next assumption, Speed equal to 0. speed is constant, not zero. Constant. Speed is constant, it is not going to vary with the time. अगर वो टाइम के साथ वैरी नहीं होता है तो उसका डेरिवेशन हम कंसीडर कर सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि डेरिवेशन इज व्हाट, इट इज चेंजेस विद द टाइम, है ना. डेरिवेशन क्या होता है, डेरिवेटिव मतलब क्या होता है, वो चेंज होता है विद द टाइम. ये बट हमारा हमने क्या किया है, स्पीड को हमने कांस्टेंट कंसीडर किया, तो हमारा अगर स्पीड कांस्टेंट हम कंसीडर कर रहे हैं, सो व्हाट विल गेट टॉर्क इक्वल्स टू लोड टॉर्क. मोटर टॉर्क इक्वल्स टू, यस, मोटर टॉर्क इक्वल्स टू लोड टॉर्क. वेरी गुड, चलो यहाँ तक समझ गया सबको, मैं ये कंसीडर कर रही हूँ, है ना. अब उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट इम्पोर्टेंट ऑपरेशन या नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, दैट इज मल्टी क्वाड्रेंट ऑपरेशन ऑफ ड्राइव. अब इसके जो ऑपरेशन रहते हैं ना बेटा, वो रहते हैं 4 टाइप. फोर ऑपरेशन. ओके, तो इसलिए हम उसे बोलते हैं मल्टी क्वाड्रेंट ऑपरेशन और 4 क्वाड्रेंट ऑपरेशन ऑफ ड्राइव. तो 4 क्वाड्रेंट में जो फर्स्ट क्वाड्रेंट रहता है वो जो है ना, y एक्सिस पे रहता है हमारा स्पीड, x एक्सिस पे रहेगा हमारा टॉर्क. ठीक है, अब यहाँ पे क्या रहेगा हमारा, स्पीड, ये रहेगा हमारा टॉर्क, ये रहेगा हमारा टॉर्क, ये रहेगा हमारा स्पीड. ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हो गया हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट.
Am I right or wrong? ये तो सबको पता है, which is very basic. यस मैम, वेरी बेसिक है ना. बट ये हमारा वर्क कैसे करता है, ये हमारा वर्क कैसे करेगा हमारे इलेक्ट्रिकल ड्राइव में, ये क्या वर्क करेगा, दैट वी आर गोइंग टू सी. अब सपोज ये है हमारा पॉजिटिव ओमेगा एन, राइट. तो हमारा ये क्या हो जाएगा फिर बताओ, ये क्या हो जाएगा बेटा, नेगेटिव. ये हो जाएगा हमारा नेगेटिव ओमेगा एन. ठीक है, मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है ना, क्योंकि मैं यहाँ पे ऐसे आपको बता रही हूँ ना, थोड़ा टाइम लगेगा. ये रहे हो जाएगा हमारा नेगेटिव ओमेगा एन, और फिर ये क्या हो जाएगा हमारा नेगेटिव टॉर्क. Am I right or wrong? Right? So we have one thing. ये हमेशा दिमाग में रखो. पावर. हमारा पावर is equal to ओमेगा m into t. Power is equal to ओमेगा m into t. Torque into speed. ओके, तो हमें पावर मिल जाएगी. अभी हमारे 4 क्वाड्रेंट पे मुझे एक बात बताओ, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे मुझे एक बात बताओ, ओमेगा एम क्या है, इट इज पॉजिटिव. ओमेगा एम इज पॉजिटिव, राइट. हमारा टॉर्क क्या है, टॉर्क भी हमारा पॉजिटिव है, यस, राइट. तो हमारा पावर क्या होगा बेटा, पॉजिटिव. पावर भी हमारा होगा पॉजिटिव. तो जब हमारा ओमेगा एम पॉजिटिव है, हमारा टॉर्क पॉजिटिव है, तो हम उसे बोल सकते हैं हम उसे बोलेंगे फॉरवर्ड मोटरिंग. हम उसे क्या बोलेंगे बेटा, फॉरवर्ड मोटरिंग. When our speed is positive, when our torque is positive, so our power is also positive. So that quadrant is nothing but the forward motoring. मतलब वो मोटरिंग की जैसे ही यूज करेगा. उसके बाद in the second quadrant what we have omega m. ओमेगा m क्या है हमारा, इट इज पॉजिटिव. सब ध्यान दो. ओके, मैं ये बार बार नहीं कंसेप्ट आपका क्लियर कराऊंगी. उसके बाद व्हाट वी हैव टॉर्क क्या है हमारा, बट बोलो जल्दी, नेगेटिव. सो अवर पावर विल बी नेगेटिव, राइट. सो हम इसे क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड ब्रेकिंग. क्या बोलेंगे इसे, फॉरवर्ड ब्रेकिंग. मतलब ये ब्रेक हो रहा है, फॉरवर्ड ब्रेकिंग हो रहा है. ठीक है, क्योंकि हमारा जो पावर है वो क्या है, निगेटिव है. हमारा पावर क्या है, निगेटिव है. यहाँ पे हमारा पावर क्या है, यहाँ पे हमारा पावर क्या है, पॉजिटिव था, तो इसलिए वो फॉरवर्ड मोटरिंग था. ठीक है, यहाँ पे क्या है, हमारा पावर निगेटिव है, तो वो फॉरवर्ड ब्रेकिंग हो गया. ठीक है, जब भी पावर पॉजिटिव रहेगा तो वो रहेगा मोटरिंग, जब भी पावर निगेटिव रहेगा वो रहेगा ब्रेकिंग. Am I right or wrong? Yes? यस. उसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं. चलो बताओ, सब बताएंगे. ओमेगा एम क्या है, ओमेगा एम नेगेटिव. गुड. फिर हमारा टॉर्क की बात आती है. टॉर्क क्या है हमारा, नेगेटिव. टॉर्क भी निगेटिव है ना. तो हमारा पावर क्या होगा,
पॉजिटिव पॉजिटिव। सबको पता है, सब अभी है पॉजिटिव है, राइट? तो ये क्या होगा, हमारा पावर पॉजिटिव है बट हमारी स्पीड क्या है बेटा, निगेटिव है। तो ये क्या होगा, मोटरिंग होगा बट रिवर्स मोटरिंग होगा, रिवर्स मोटरिंग। ऑलराइट, समझा? मोटरिंग क्यों है, क्योंकि हमारा पावर पॉजिटिव है, ठीक है, हमारी स्पीड क्या है, निगेटिव है, इसलिए वो रिवर्स होगा, बट पावर पॉजिटिव है करके वो मोटरिंग होगा, ठीक है। नाउ द फोर्थ एंड द लास्ट वन, ओके, सेम। ओमेगा एम क्या है बेटा, ओमेगा एम क्या है, नेगेटिव 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 राइट। टॉर्क क्या है हमारा, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। तो हमारा पावर क्या होगा बेटा, नेगेटिव निगेटिव। सो इसे हम क्या बोलेंगे बेटा, रिवर्स ब्रेकिंग रिवर्स ब्रेकिंग। ये समझ गया ऑपरेशन? अगर हमारा पावर निगेटिव है तो मोटर हमारा एक्ट होगा एज अ जनरेटर, दैट इज ब्रेकिंग। अगर हमारा पावर पॉजिटिव है सो इट विल एक्ट एज अ मोटर ओनली। अब आपको कौन से कंसेप्ट याद रखने हैं मुझे बताओ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, चलो फिर से बताएंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, फॉरवर्ड मोटरिंग, ठीक है। मैं बोलूंगी ओमेगा एम फर्स्ट क्वाड्रेंट में, आपको बताना है दैट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, ओके। सो इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ओमेगा एम इज पॉजिटिव टॉर्क इज, पॉजिटिव so the power is, so the power also positive, so it is, what is it, forward motoring, okay. In the second quadrant omega m is पॉजिटिव positive, torque is नेगेटिव negative, so the power is नेगेटिव negative, so it will consider as forward braking, good. In the third quadrant our speed is negative, our torque is नेगेटिव our power will be then पॉजिटिव positive, so it will consider as रिवर्स मोटर reverse motoring, right? Then the fourth and the last quadrant we have speed, which is नेगेटिव speed is negative, torque is पॉजिटिव positive, so our power is negative, right? So the what is it, रिवर्स ब्रेकिंग reverse braking, good, very good, great. अब समझा, कॉन्सेप्ट समझा आपको, what is this the operation of the drive, what are the different types of mode of quadrants? अच्छे से समझा या फिर से मुझे समझाने की जरूरत है बेटा? जस्ट एक बार चैट बॉक्स में बता दो, या फिर ऐसे भी बता दो। सबको समझा, सबको, जितने भी 65 64 स्टूडेंट्स हैं, नो मतलब समझा नहीं कि बताने की जरूरत नहीं है, नो रिपेयरने की जरूरत नहीं। अच्छा, ग्रेट, चलो। और 64 स्टूडेंट्स सबको समझा है? कोई एक भी ऐसा होगा जिसको नहीं समझा, प्लीज मुझे बताओ, मैं अब भी 5 मिनट में 1 मिनट में रिपीट कर दूं। कोई भी एक बंदा जिसे समझा ही नहीं है, शैल कंसीडर सबको समझा, क्योंकि यहाँ पे मुझे 64 लोग दिख रहे हैं, है ना? 64 बच्चों को समझ गया बेटा? यस मैम। ग्रेट। इजी है, हार्ड है, कैसे हो रहा है?
इजी है कि हार्ड है बताओ? बहुत इजी है। बहुत इजी है, एकदम मस्त, समझ में आ रहा है सब? अच्छा, डायनामिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल ड्राइव ये समझा? जो सिंपल सा छोटा सा एक डेरिवेशन था वो समझा सबको? यस मैम। है ना? वहां पे क्या सबसे लास्ट में याद रखो कि स्टेडी स्टेट कंडीशन है तो मोटर टॉर्क इक्वल टू लोड टॉर्क होगा, बट वो काउंटर करेंगे। क्यों काउंटर करेंगे बेटा? क्यों काउंटर करेंगे? क्योंकि दोनों का जो डायरेक्शन है ना, दोनों टॉर्क का जो डायरेक्शन है वो क्या है? अपोजिट टू ईच अदर, इसलिए वो काउंटर कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ इतना ध्यान में रखो। उसके बाद ये स्पीड टॉर्क कन्वेंशन ऑफ मल्टी क्वाड्रेंट ऑपरेशन, ये समझा आपको सबको? अब हम एक एग्जांपल ले रहे हैं हॉइस्ट का। मैंने आपको हॉइस्ट दिखाया, हॉइस्ट कैसे रहता है आप ये देख सकते हो। ये है आपका हॉइस्ट, यहाँ पे मोटर है, ठीक है, ये सिंपल, ये देखो ये हॉइस्ट है, सर्कुलर है। एक साइड में एक हमने यहाँ पे कुछ तो हुक टाइप है जहाँ पे हम लोड लगाएंगे, और एक सेकंड काउंटर वेट रहता है ना, ये आप देख सकते हो। यहाँ पे भी एक साइड में हम लोड लगाएंगे और ये छोटा सा बटन्स दिख रहा है, ये काउंटर वेट जैसे रहता है। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो। ठीक है, ये सब है ना, तो ये हम अभी स्टडी करेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये जो है क्या बोलते हैं, डायग्राम आप देख सकते हो। हाँ, तो यहाँ पे क्या किया है ना इन्होंने। हेलो, आपका आवाज आ रहा है मेरा? हेलो यस मैम, विजिबल हेलो हेलो, आ रहा है ना? तो ये डायग्राम जैसे हमने अभी क्या किया ना, हमने 4 क्वाड्रेंट ऑपरेशन हमने देखा है ना, कि स्पीड कैसी है, टॉर्क क्या है क्या नहीं है ना। अब उसको हम एज एन एग्जांपल एक हॉइस्ट ले रहे हैं, एक लिफ्ट, जैसे छोटा सा लिफ्ट रहता है वैसे हॉइस्ट। मैंने अभी आपको हॉइस्ट का डायग्राम दिखाया, सेम ऐसा ही है जैसे यहाँ पे बनाया है। आपने जो एक्चुअल डायग्राम देखा, अभी मैंने इमेज दिखाई, वो और ये सेम आपको लग रहा है नहीं लग रहा है बताओ? Yes or no? यस मैम, यस। Yes. Okay. So in the first quadrant हमारे पास क्या है, एक लोडेड केज है, मतलब एक लोड है ना, और काउंटर वेट लगा हुआ है दूसरे साइड जो उसको काउंटर करेगा। ठीक है, as we all know that our load torque is opposite of the motor torque। जो भी मोटर टॉर्क की जो डायरेक्शन है, इट इज अपोजिट टू द लोड टॉर्क। ठीक है, तो फॉरवर्ड मोटरिंग में क्या होगा, स्पीड है हमारी पॉजिटिव। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, जो एंटी क्लॉकवाइज है उसे पॉजिटिव कंसीडर किया है। तो क्यों कंसीडर किया? क्योंकि हमारा लोड है होना चाहिए ऊपर जाना चाहिए, हमारा लोड ऊपर जाना चाहिए, मतलब हमारी स्पीड कैसे होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज हमारी स्पीड होना चाहिए। तो ये स्पीड दिख रहा है, स्पीड जैसी है वैसे हमारा मोटर की भी डायरेक्शन दिख रही है, मोटर टॉर्क की डायरेक्शन, उसके अपोजिट है हमारी लोड टॉर्क की डायरेक्शन। तो हमारा वेट जो है, लोडेड केज है, वो अपर डायरेक्शन में जाना चाहिए। जब वो अपर डायरेक्शन में जाएगा तो वो हो जाएगा मोटरिंग, और जब वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तब वो जाएगा हमारी ब्रेक। ठीक है, एम तो सॉरी, पहला आप देख लो पहले कि ये जो है ये है फॉरवर्ड मोटरिंग। जब वो ऊपर जा रहा है, जो स्पीड है हमारी इस साइड से जा रही है, ठीक है, फॉरवर्ड हो रही है, तो ये हो जाएगी हमारी फॉरवर्ड मोटरिंग। स्पीड हमारी वैसी ही है इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है, बट हमारा जो मोटर टॉर्क है वो नीचे जा रहा है। ठीक है, अपोजिट हो रहा है। क्यों? क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट पे हमारा जो केज है वो एम्प्टी है, बट हमारा जो काउंटर वेट है वो मतलब वेटेड है। ठीक है, बट इसी वजह से जो मोटर टॉर्क है वो जाएगा हमारा वो चेंज होगा। ठीक है, उसके बाद इन द थर्ड क्वाड्रेंट क्या होगा, एम्प्टी केज है वो ऊपर आ चुका था,
ठीक है, क्योंकि हमारा काउंटर वेट ज्यादा है, हमारा एम्प्टी केज ऊपर आ गया है, ठीक है, तो उसके हिसाब से जो स्पीड है वो नीचे जाएगी और मोटर टॉर्क भी नीचे जाएगा, दैट इज मोटरिंग, ठीक है, बट वो रिवर्स कंडीशन में है, ठीक है। उसके बाद है हमारी ब्रेकिंग। ब्रेकिंग कैसा है कि हमने फिर से जो केज है उसको लोड कर दिया तो वो और काउंटर वेट से ज्यादा हो गया, तो वो जो लोडेड केज है वो इट विल स्टार्ट मूविंग डाउनवर्ड, तो जैसे वो इट विल स्टार्ट मूविंग डाउनवर्ड, सो दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ ब्रेकिंग। Okay, so in the first quadrant, the loaded cage is there, counterweight is there, ठीक है, तो स्पीड हमारी वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहिए करके वो फॉरवर्ड मोटरिंग हो जाएगी। अब इन द सेकेंड हमने जस्ट केज को एम्प्टी किया है, वो डायरेक्शन ऊपर नहीं गया हुआ, जस्ट हमने उसे एम्प्टी किया है, तो देन इट विल मूव स्टार्टिंग मूव टुवर्ड्स द अपवर्ड साइड ऑफ द पुली। ओके, सो दैट विल बी द ब्रेकिंग, क्योंकि वो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। रिवर्स मोटरिंग में क्या हो गया, वो ऊपर ऑलरेडी जा चुका है, वो नीचे आने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि हमारा केज एम्प्टी है लेकिन हमारा काउंटर वेट ज्यादा है, तो वो ज्यादा है तो वो क्या करेगा, ऊपर जा चुका है, ठीक है, तो वो रिवर्स मोटरिंग हो जाएगा। अब हमने उस एम्प्टी केज को, जैसे ही वो ऊपर गया हमने उस एम्प्टी केज को लोड कर दिया, लोडेड केज, तो जैसे ही वो लोडेड केज में हो जाएगा देन इट विल move to start moving downward, so that will be the reverse brake. Okay, so these are the concept of the first quadrant, second quadrant, third quadrant and the fourth quadrant. What is there, the hoist in which the loaded cage is moving upward. फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है, वो अपवर्ड मूव हो रहा है, जैसे मैंने बताया, द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ मोटर दैट इज ओमेगा विल बी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दैट इज पॉजिटिव स्पीड। द टॉर्क, लोड टॉर्क, to raise the hoist upward, the motor torque that is Tm must act in the same direction of the speed. hoist को upward direction में जाने के लिए जो हमारा मोटर टॉर्क है वो सेम डायरेक्शन में, स्पीड के सेम डायरेक्शन में वर्क करेगा। सो द बोथ मोटर एंड मोटर स्पीड एंड टॉर्क विल बी पॉजिटिव। जब मोटर टॉर्क और स्पीड पॉजिटिव होता है तो हमने क्या देखा, इट विल कंसिडर एज अ फॉरवर्ड मोटरिंग। Am I right or wrong? जैसे हमने पहले जो ये यहाँ पे देखा है, when the speed and torque both are positive, then it is considered as a forward motoring. Okay. In the second quadrant, the hoist in which unloaded cage is moving upward. Unloaded cage upward move करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। The counter weight is heavier than the unload cage, that we all know that, and hence hoist can move upward at a dangerous speed. वो बहुत ही ज्यादा स्पीड में वो क्या होगा, अपवर्ड, क्योंकि काउंटर वेट उससे कई ज्यादा गुना, मतलब कई गुना ज्यादा है, इस वजह से वो क्या होगा, डेंजरसली स्पीड उसकी बढ़ जाएगी। To prevent this, motor must produce a torque in the opposite direction of the motor speed, omega, in order to produce brake to brake the motor. ठीक है, so for the braking of motor, therefore the motor torque Tm will be negative and with the motor speed omega, and the motor speed omega will be positive. So this quadrant is what, forward braking. हमारे स्पीड है पॉजिटिव बट टॉर्क उसको काउंटर करने के लिए नेगेटिव वर्क करेगा, सो उसको हम बोलेंगे फॉरवर्ड ब्रेक। ओके, व्हाट इज देयर इन द थर्ड क्वाड्रेंट देन, द केज इज एम्प्टी, सॉरी, द केज इज एम्प्टी, राइट, इज होइस्टिंग डाउन, वो डाउनवर्ड जर्नी में आ जाएगा। सो द डाउनवर्ड जर्नी ऑफ एम्प्टी केज इज प्रिवेंटेड बाय द टॉर्क एक्सर्टेड बाय द काउंटर वेट। Okay, so the direction of motor Tm should be in the same direction of the motor rotation, that is omega. Due to downward moment of the cage, the direction of rotation will be reverse, that is omega is negative and the torque, motor torque is also negative, but the power will be positive, so that will consider quadrant is considered as a reverse motoring. Okay, and the last fourth quadrant is where speed is negative and torque is positive, so that will consider as a reverse braking. Okay, this phenomena is called the reverse braking. ये समझा आपको सबको?
उन्होंने जस्ट जो हमने अभी स्टडी किया, जो यहाँ पे हमने स्टडी किया